بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کیسی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور آواز خوش۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مستی، وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس فیس بک گروپ پر اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماہر فرید کے معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی عارضہ لاحق تھا، کوئی ذہنی عارضہ۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانے کیسے لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہوا۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار ہوا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے اور بہتر ہولیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے خداور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، جینز کے نیچے سفید جاگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے یہی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پر وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری سی راہداری تھی، فاصلے فاصلے پر کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کر ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتے ہوئے دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر تک پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے سے صوفے پر ایک آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پر چارکول ویسٹ پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مروبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کر ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔
टांग पर टांग जमा कर बैठने से माहिर का एक बूट फजा में था। उस बूट की स्याह चमकीली सतह पर कैफ का अक्स नजर आ रहा था। आप यकीनन माहिर फरीद हैं, वो संजीदगी से कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज थी जिस पर लेदर कवर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था उस कमरे की फजा में जो आसाब पर सवार होता था। लैवेंडर और मोतिये की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहिद आवाज़ माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी, जिन्हें वो सोफे के हत्थे से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स की अमारत और वजाहत के रोब में नहीं आएगा। खनकार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो उसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और लोग मुझे फोटोग्राफी के लिए ही बुलाते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे की पुश से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। आंखें हुज़नूस उसकी आंखों पर जमी हुई थी। सिर्फ फोटोग्राफर? उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो ना, एक नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत सारे काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक कर उसे देखा, फिर मैनेजर को। ये बात गैर मुतवक्का थी। उसके अब्रू इकट्ठे हुए। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से उचकाए। नाखून फिर सोफे के हाथ से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार न सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि उसने तुम्हें बहुत से कर्जों में डुबो दिया है। अब हाल ये है कि तुम्हारा कैफ है, जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। उनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पर शिकन पड़ी और जिस्म के सारे असाब तन से गए। आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? उसने बारी बारी उन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। उसे इंटरनेट पर पढ़ी बातें याद आईं। क्या किसी साइकोपाथ की आंखें ऐसी होती हैं? कैसे? वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से पैर कैसे फिसल गया। क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की। अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका। मजबूरियों ने उसके कदम जंजीर कर रखे थे। उसे उस पुरासरार शख्स की ऑफर सुननी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतरवा दूंगा, और तुम अगर दोबारा कारोबार करना चाहो तो उसको सेट करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। उसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था उस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पर बर्फपूर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर फाइनली उसने मेज पर रखी भूरे लेदर कवर की डायरी उठाई। वो उंगलियों से डायरी के अंदर से एक खूबसूरत तस्वीर निकालने लगा और सामने रख दी। कैफ ने नज़रें झुका कर देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी, चेहरे का क्लोजअप। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें सब्ज थीं और भूरे बाल ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफी में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कज़न सफूरा की दोस्त है। ओके। कैफ ने उलझ कर उसे देखा। सफूरा उसकी अमीर तरीन सेकंड कज़न थी। महीनों बाद उससे मुलाकात हुआ करती थी और उसमें भी सफूरा उसके एस्टैब्लिश होने के लेक्चर देती थी। तंग आकर उसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही छोड़ रखा था। सफूरा ने अपनी उस दोस्त को 2-3 दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास कोई ज़्यादा दिन तक गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते उसने फिर सफूरा से कहा है कि कोई काबिले भरोसा गार्ड ढूंढे। सफ़ेद बैर बालों वाला मैनेजर उस दौरान बारी बारी उन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के मैच में गेंद का नज़रों से ताक़ुब कर रहा हो। ओके, कैफ अभी तक समझ नहीं पाया। तुम कैफ अपनी कज़न सफूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें उसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 महीने के लिए काम तो किया था। तुम्हारे पास तजुर्बा भी है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बस इतना सा काम है। बिलाखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा। आप चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं और उसका एतमाद हासिल करूं, मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पर सख्ती दर आई। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते, काम की कीमत पूछते हैं। अब्रू उठाकर सर्द लहजे में उसने तनबीह की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सारी खुशबुएं मर गईं। अब सिर्फ एक एहसास अरगमाली था।
देखें। वो कदरे धीमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताएं कि मुझे इस जॉब को लेकर करना क्या है, मेरा मकसद क्या होगा। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमज़ा होकर मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। उस पर एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिन से पढ़े, फिर सिफर गिने। एक बार, 2 बार। उसकी आंखें ताज्जुब से फैली। नजरें उठाकर तजब्जुब से उसने माहिर को देखा। बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नेक काम के नहीं दिया करता कैफ, वो सपाट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पर लिखी रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया। इतना कि थोड़ी सीरियस से लगने लगी। किसी लड़की का गार्ड बनने का मतलब ये है साई की तरह उसके साथ रहना, उस पर नज़र रखना, उसको नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे नहीं होगा। सर हुनूस झुका हुआ था। माहिर फरीद कुछ देर तक उसके झुके हुए सर को घूरता रहा, फिर वो उठा, टाई की नॉट ढीली की। कैफ ने चेहरा उठाकर उसे देखा। वो सोफे के पीछे चला गया और खिड़की के सामने चक्कर काटने लगा, दाएं से बाएं, पेंडुलम की तरह, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर कदम रोक के उसने दूर बैठे कैफ को देखा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, फिर क्या करोगे? उसकी आवाज़ में नरमी थी, जैसे समझा रहा हो। कारोबार में नुकसान और कर्जों ने तुम्हारी सोशल लाइफ ख़त्म करके रख दी है। मर्द का मुआशी तौर पर इस्टेब्लिश ना होना उसकी इज्जत आधी कर देता है। वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, लाउंज लिजर्ड बन जाता है, घर से नहीं निकलता, और निकलता है तो ऐसे जूते पहन के। कैफ ने चौंक कर अपने जूतों को देखा। सफ़ेद जॉगर सब मटियाले हो चुके थे। उसने पैर कतरे पीछे किए, लेकिन वो उनको छुपा नहीं सकता था। दूसरी तरफ मेरी ऑफ़र है। माहिर फरीद वापस उसके सामने आके बैठा। मेरे लिए सिर्फ 2 माह काम करो, सिर्फ 2 माह। बस साथ अपनी फ़ोटोग्राफी जारी रखो, अपना नया बिजनेस प्लान बनाओ। 2 महीने ख़त्म होते ही मैं खुद तुम्हारा बिजनेस सेट करवा के दूंगा। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मेरी टीम सब कर लेगी। सिर्फ 2 महीने। विक्ट्री की 2 उंगलियां बनाकर उसे दिखाएं। आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? माहिर फरीद पीछे को हुआ, टांग पर टांग जमाई। अब वो बोला तो आवाज़ में बरहमी थी, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? कैफ जमाल का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ओह, आप जल्दी में हैं। अगर मैं जाके सफूरा को बता दूं कि कोई उसकी दोस्त को स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है तो? वो कैफ को चंद सानिये देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने तस्वीर उठाई। कैफ को तस्वीर की पुष्ट नजर आई। वहाँ कुछ लिखा था, 5 अल्फाज कुछ लिखे थे। आपको कैसे मालूम कि मैं ये नहीं करूँगा? वो मुतजिब हुआ। माहिर फरीद ने जवाब नहीं दिया। उसने लेदर डायरी खोली। कैफ की नजरें नीचे झुकी। जिसे वो डायरी समझ रहा था वो दरअसल फोटो एल्बम थी। अगले ही लम्हे उसका सांस रुक गया। पहली 2 सफ़े पर ऊपर नीचे 2 तस्वीरें थी। ऊपरी तस्वीर एक स्याह बालों वाली लड़की की थी, इसमें वो मुस्कुरा रही थी। निचली तस्वीर उसी लड़की की थी, लेकिन उसकी आंखें नीलो नील थीं, पेशानी जख्मी थी और पलकें बंद थी। शायद वो किसी लाश की तस्वीर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़े पलटाने लगा। हर सफ़े पर ऊपर एक लड़की की ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे ज़ख्मी है लाश जैसी तस्वीर। तस्वीरें मुख्तलिफ लड़कियों की थीं। उसने छठा सफ़ा पलटाया तो वो खाली था। उसने ऊपरी खाने में सब्ज़ आँखों वाली लड़की की तस्वीर डाल दी। नीचे जगह भी खाली थी। कैफ अपनी जगह से हिल नहीं सका। अतराफ में सारी खुशबुएं दम तोड़ गई थी। अब सिर्फ काफूर की बू थी जो अंदर बाहर फैली थी। माहिर फरीद ने खुली हुई एल्बम पर धकेली और नज़रें उठाकर कैफ को देखा। फिर उसने 2 फ़िक्रे बोले। वो 2 फ़िक्रे उसकी सारी गुफ्तगू पे भारी थे। कैफ जमाल ने रुकी हुई सांस खारिज की। पर्ची पर लिखे सिफर गिने। ये उसके कर्जे उतारने के लिए काफ़ी थे और इन 2 फ़िक्रों के बाद उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ 2 माह के लिए वो ये काम कर सकता था। मैं तैयार हूँ। माहिर फरीद मुस्कुराया। गुड बॉय। फिर मैनेजर को इशारा किया। उसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाल कर कैफ के सामने रख दिया। ये काम के अलावा है, सिर्फ इसलिए कि तुम नए जूते खरीद सको। आइंदा किसी वर्क मीटिंग पर ऐसे जूते पहनकर मत आना। नरमी से उसने तनबीह की। अब तुम जाओ, मालिक तुमसे खुद राब्ता कर लेगा। सफ़ेद बालों वाले की तरफ इशारा किया। कैफ ने एक मलामती नज़र उस पर डाली, पैकेट उठाया और वहाँ से उठ गया। मुझे इस लड़के पर एतबार नहीं है माहिर। उसके जाते ही मालिक नाखुशी से बोला। एतबार तो मुझे तुम पर भी नहीं है, लेकिन हम साथ काम कर रहे हैं ना। वो आम से लहजे में कहते हुए उठा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। दोपहर की सुनहरी रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। माहिर ने आंखें बंद कर लीं। माहिर, मैनेजर ने पुकारा।
इंतकाम के सफ़र पर निकलने वाले को चाहिए कि 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कॉन्फ्यूशियस ने कहा था। और जानते हो उसे क्या चीज़ कब्र तक लेके गई थी? अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द सी सरगोशी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। मेज़ पर एल्बम यूं ही खुला था। मालिक ने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया, फिर हाथ बढ़ा के छठा सफ़ा पलटाया तो सब्ज़ आँखों वाली लड़की की तस्वीर की पुष्ट दिखाई देने लगी। वहाँ उर्दू में लिखा था, हौरे जहाँ की बेटी कशमाला।